हेलो। हेलो। Yes, ma'am. Good morning, हाँ ma'am. हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग मैम, आई होप आई एम ऑडिबल। Yes, ma'am. Ma'am, I'm just letting all the students to join fast, हाँ so हाँ, नो we'll इश्यूज, wait for 5 minutes. आई वाज जी जस्ट मैम, जी मैम, चेकिंग जी वेदर मैम, आई एम ऑडिबल इनफ। जी मैम, yes मैम.
સર નેટ સ્લો છે ને તો એક્ઝિટ થઈ ગયા હતા. પ્લીઝ હોસ્ટ બનાવી આપો અમને પાછું. હા नेट बहुत स्लो है. सर ने पूछे दीजिए कोई हो तो नेट में पूछे आना सिवाय बीजू कोई हो ने. Good morning. This is Dr. Sheetal Bhati. Can you hear me? Hello. Good morning. Yes, ma'am. Good morning. Can you hear me? Good morning, ma'am. Yes, ma'am. Very good morning. आ रही है clearly Good morning. क्योंकि यहाँ Ma'am, थोड़ा good morning. unstable हेलो हेलो मैडम आवाज हेलो कट मैडम हो रही है आपकी. शीतल मैम ऑडियो वीडियो નથી આવતો મેડમ તમારો Hello. Yes. ઓડિયો વીડિયો નથી હા આવતો એ મેડમ અત્યારે નેટ હા કાંઈ વાંધો નહીં. અત્યારે નેટ સ્લો છે એટલે મેં કેમેરા ઓફ રાખ્યું છે. કરીશ થોડી વારમાં. અચ્છા અવાજ સરસ આવે છે ઓકે થેન્ક યુ સો ઓકે મચ. ઓકે We are here for you. Ma'am, Students will please mute their students please Dr. Anupama Dave, welcome. I'm seeing you're there since some time, but we are trying to sort out the internet issue. Warm welcome to you, Dave ma'am. Thank you, I can see you there. Hopefully I should be able to start my video. There are 76 participants. એટલે અત્યારે લગભગ participants almost good strength માં આવી ગયા છે. આપણે 2 મિનિટમાં શરૂ કરીએ મેમ. હા અને તમારું પીપીટી તમે ઓન કરીને એકવાર શેર કરીને ટ્રાય કરી લેવું છે ત્યાર સુધી. हाँ, yes, ma'am. Is it visible? Yeah, perfect. I can see. Yeah, all right. It's moving also and it is perfectly visible. Thank you, ma'am. हाँ, मैं बीच बीच में कुछ और भी रिसर्च पेपर्स शेयर आपके पास करने है? जी जी तब मैं जस्ट एक बार इन्फॉर्म करूंगी. अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन जस्ट लेट मी नो, है ना. आई एम हियर ओनली मी Yeah. और माय रिसर्च स्कॉलर चार्मी मैम बोथ आर हियर टू असिस्ट यू फुल टाइम. हाँ इट्स हाँ, जस्ट थैंक यू. दैट आज थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी लो है तो हम लोग वीडियो थोड़ा ऑफ रखेंगे थोड़ी देर तक, कोई बात नहीं मैम. है ना मैम. हाँ हाँ. शायद ऐसा हो सकता है मैं बाद में मोबाइल से दूसरे रूम में जाके ऑन हो जाऊंगी. अभी फिलहाल हम लोग सेशन शुरू कर दें विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम because ma'am has given us her precious time for this session. First and foremost, let me warmly welcome Dr. Anupama Chirag Dave, Madam. Madam Associate Professor and Program Chair of BBA, School of Business and Law, Navrachana University, Vadodara. She has organized more than 2 national conferences, attended over 20 international and national seminars and conferences, and ma'am has more than 25 publications in UGC CARE ABDC Scopus listed journals. She is working as principal investigator for NUV Seed Grant.
મેમને 8 એવોર્ડ્સ મળેલા છે બેસ્ટ રિસર્ચ પેપર કેટેગરીમાં, અને એમણે મોર દેન 29 મોડ્યુલ્સ ઈ કન્ટેન્ટ ડેવલપ કરેલા છે સ્વયં મુખ પોર્ટલ્સ માટે. એટલે આપણી પાસે એના સિવાય મેમ ઘણા બધા ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ્સ આપ કરો છો. આપનો મેઇન એરિયા માર્કેટિંગ મેનેજમેન્ટ, બ્રાન્ડિંગ, કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર વગેરે છે. એટલે વી આર વેરી હેપી એન્ડ ગ્લેડ ટુ હેવ સચ a lovely resource person for the first session of second day of PhD coursework. મેડમ, તમને જસ્ટ ઇન્ફોર્મ તો કરેલું છે, પણ સ્ટુડન્ટ્સ વુડ પ્રિફર નોન ઇંગ્લિશ as much as possible, but we understand आपनो फ्लो ऑफ डिलीवरी, आपको जिस लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्ट हो, हिंदी इंग्लिश तक, हिंदी और गुजराती में स्टूडेंट्स ज्यादा कंफर्टेबल है, आपको जस्ट मैं बता देती हूँ. और जी मैम. टू यू आई विल नाउ हैंड ओवर द माइक टू डॉक्टर अनुपमा दवे. वेलकम मैम. Thank you शीतल मैम. I hope I'm audible. परफेक्टली. यस मैम. ओके, सो मैम ने ऑलरेडी मुझे बताया है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा हिंदी और गुजराती प्रेफर करते हैं. गुजराती में मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ. हिंदी में आई एम अ बिट मोर कंफर्टेबल, तो मैं हिंदी लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ करने का कोशिश करूँगी. एंड अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने आप को अनम्यूट करके मुझे जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं. बट आई ट्राई कि मैं जितना हो सके वो हिंदी में कन्वर्सेशन रखूं अपना, सो दैट हमारा ये जितना भी टाइम है वी आर एबल टू हेल्प ईच अदर आउट एंड improve our learning as far as the topic for today is concerned, which is crafting the research paper. सो हेलो ऑल. ऑलरेडी डॉक्टर शीतल मैम ने मेरा बहुत ही अच्छा सा इंट्रोडक्शन दिया है. आई वुड लाइक टू टेक अ वाइल टॉकिंग अबाउट माय एजुकेशनल बैकग्राउंड. आई एम अ पीएचडी फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी एंड मैंने पीएचडी अपनी मार्केटिंग डोमेन में की है, ब्रांड इक्विटी को लेकर. आज मैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि हम आज सेशन में बात करने वाले हैं रिसर्च पेपर बनाते टाइम हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है. तो मैंने कुछ रिसर्च पेपर्स हैं जो यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं और जिनकी मदद से मैं आपको ये बताना चाहूंगी और गाइड करना चाहूंगी कि रिसर्च पेपर लिखते टाइम हमें कौन सी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए. कुछ चीजें आई वुड बी स्पीकिंग फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, क्योंकि आई हैव कंप्लीटेड माय पीएचडी इन 2017 एंड सिंस देन आई एम डूइंग रिसर्च. तो टू बिगिन विद आई वुड लाइक टू से कि पीएचडी इज जस्ट बिगिनिंग ऑफ द रिसर्च. तो सबको ऐसा लगता है कि एक बार डॉक्टर लग जाता है उसके बाद फिर रिसर्च का कोई मतलब नहीं है, बट एक्चुअली डॉक्टर लगने के बाद रिसर्च का ज्यादा समझ में आता है. बिकॉज जब हम पीएचडी की प्रोसेस में होते हैं तब हम लोग एक्चुअली सीख रहे होते हैं कि हमें करना क्या है. सो कोर्स वर्क एक्चुअली इज अ वेरी वेरी गुड फोरम, क्योंकि उससे आप दूसरे लोगों को समझ सकते हो, रिसर्च के बारे में ज्यादा जान सकते हो. एंड ऑल थैंक्स टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स दैट आर अवेलेबल. हम एक दूसरे से फिजिकली ना होने के बावजूद भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिल सकते हैं और अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम आई विल स्टार्ट विद द टॉपिक. सो हमारा आज का टॉपिक है क्राफ्टिंग द रिसर्च पेपर, जिसका ये मतलब है जब हम रिसर्च पेपर लिखते हैं तो हमें कौन सी चीजों को ध्यान में चाहिए. तो इररिस्पेक्टिव, मैंने चैट बॉक्स में देखा कि आप लोग सब अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं. कुछ लोग लॉ के हैं, कुछ लोग इंग्लिश के हैं, कुछ लोग ह्यूमैनिटीज के हैं, कुछ लोग कॉमर्स और मैनेजमेंट के हैं. जो बेसिक जो फॉर्मेट रहता है रिसर्च पेपर का वो सेम रहता है. कंटेंट ऑब्वियसली चेंज होते हैं क्योंकि सब्जेक्ट हमारा अलग है, लेकिन बेसिक जो फॉर्मेट है, जो स्ट्रक्चर है, वो ऑलमोस्ट सबका सेम रहता है. तो मैं उसी स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगी और कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाऊंगी एज आई मेंशन विद द हेल्प ऑफ फ्यू रिसर्च पेपर्स. सो हमारा फ्लो कुछ इस प्रकार का होगा. पहले मैं आपसे बात करूंगी कि हम जो रिसर्च पेपर की बात कर रहे हैं वो हमारा रिसर्च आउटपुट है. आउटपुट मतलब जो हम इतने टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं, इतना सारा टाइम डिवोट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली द आउटकम ऑफ दिस एंटायर पीएचडी जर्नी इज कंसिडर्ड टू बी अ रिसर्च आउटपुट, जो कि अलग अलग रूप में हो सकता है और उनमें का एक रूप होता है रिसर्च पेपर. ओके, तो जब हम कोई भी रिसर्च आउटपुट क्रिएट करते हैं हमें कौन सी चीजें शुरुआत में ध्यान रखनी है, उन चीजों पे हम थोड़ा
we will see them a bit. Then I would like to talk about हर एक एस्पेक्ट्स जो रिसर्च पेपर के हैं उसमें हमारा कंटेंट किस प्रकार का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम रिसर्च पेपर कोई भी पीडीएफ हम ओपन करते हैं कोई रिसर्च पेपर का, तो देर इज अ टाइटल, उसके बाद एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, फिर इंट्रोडक्शन होता है। तो बट एब्स्ट्रैक्ट में क्या कंटेंट होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में क्या कंटेंट होना चाहिए, एंड सो ऑन। सो हर एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैं बात करूंगी कि उसमें किस तरीके के कंटेंट होने चाहिए, और मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगी उसके लिए। एंड लास्टली फाइनली हमारा रिसर्च पेपर होना कैसे चाहिए। सो दीज आर द थ्री बेसिक थिंग्स दैट आई विल बी टॉक in the session today. So let us start with research output. I hope abhi tak my language is comfortable to everybody. If I could get some uh Yes, ma'am. Yes, ma'am. uh-huh. Yes, ma'am. ma'am. Okay, Carry I on. hope I'm not going very fast. No, ma'am. नहीं, It's ma'am. Okay, thank you. Carry on, So carry on. let us talk about research output. तो जब हम कोई भी रिसर्च आउटपुट की बात कर रहे हैं हमारे पीएचडी जर्नी में, तो रिसर्च आउटपुट अलग अलग प्रकार के होते हैं। बट बीइंग इनटू एकेडमिक्स, जो रिसर्च आउटपुट्स हम लोग जनरेट करते हैं वो हो सकते हैं रिपोर्ट फॉर्मेट में। फॉर एग्जाम्पल, हमको कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कोई सीड ग्रांट मिली है, जैसे मैं एक सीड ग्रांट पे काम कर रही हूँ, तो उसका आउटपुट होगा इन फॉर्मेट ऑफ अ रिपोर्ट और अ डॉक्यूमेंटेशन। इट कैन इवन बी इन फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं कि हम रिसर्च कर रहे हैं और देन उसके जो भी फाइंडिंग्स हैं, उनकी जो भी हमारी समरी है, उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ अ रिसर्च पेपर। एंड लास्टली इट कैन इवन बी इन फॉर्म ऑफ थीसिस. Okay, આના so પછી thesis book is માં something બાકી છે ઈ which કરી લઉં if you could please unmute બાકી છે ઈ yourself. જોઈને ઈ પછી કરી લઉં પછી આમાં Unmute. બાકી છે ઈ Please કરીને mute कर दीजिए भाविका. या और जब हमारी पीएचडी जर्नी खत्म होती है तो हम लोग अपनी थीसिस सबमिट करते हैं। तो दीज आर विविड फॉर्मेट्स ऑफ रिसर्च आउटपुट। बट इन टुडेज सेशन हम लोग जो बात करने वाले हैं, हम हमारे एक स्पेसिफिक रिसर्च आउटपुट की बात कर रहे हैं विच इज रिसर्च पेपर। उसे कैसे बनाया जाना चाहिए। नाउ इवन बिफोर वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ अ रिसर्च पेपर, देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट वी नीड टू कंसिडर. So what are those important aspects? The first and foremost is the layout of the output. तो जब भी हम कोई चीज लिखने के लिए भी बैठते हैं, फॉर एग्जाम्पल एज अ स्टूडेंट जब हमें क्वेश्चन आंसर्स भी लिखने बैठते हैं, तो हमारे ध्यान में होता है कि हमें पहले पॉइंट्स लिखने हैं या हमें डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद हमें उसके बारे में डिटेल में लिखना है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सिमिलरली जब हम कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं तभी भी हमें पता होना चाहिए कि उसका लेआउट क्या होना चाहिए। अब ये जो लेआउट होता है, कुछ चीजें हैं जो बहुत ही फिक्स्ड हैं, लेकिन कुछ चीजें होती है जो हर जर्नल की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। तो इसलिए बिफोर वी स्टार्ट रिसर्च पेपर राइटिंग, और मे बी बिफोर वी प्लान टू सेंड इट फॉर पब्लिकेशन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें ये पता हो कि हम किस जर्नल में अपने रिसर्च पेपर को सेंड करने के बारे में सोच रहे हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। मैं इसका एग्जांपल आपको कुछ वेबसाइट के थ्रू अभी 5-6 मिनट में दे दूंगी। थर्ड चीज हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी हमारे पब्लिकेशन है या हमारा जो रिसर्च है वो हमेशा जाता है ब्लाइंड रिव्यू के लिए, मतलब पब्लिकेशन से पहले वो जाता है आई वुड से चेकिंग के लिए फॉर करेक्शन। तो वहां पे जो उनका पर्सपेक्टिव होता है वो हमें पता होना चाहिए कि एडिटर्स हैं या तो फिर रिव्यूअर्स है वो हमारे पेपर को किस एंगल से चेक करेंगे, क्योंकि अगर उन्हें हमारा पेपर ठीक नहीं लगा तो हमारे रिसर्च पेपर का पब्लिश होने का चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो इसलिए हमें रिसर्चर्स का पर्सपेक्टिव भी समझना पड़ता है जब हम रिसर्च पेपर को लिखते हैं। उसी तरह से हमें रीडर्स का पर्सपेक्टिव भी पता होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं फॉर द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल कोई लॉ में अगर रिसर्च कर रहा है तो वो कर रहे होंगे फॉर द बॉडीज हु आर एसोसिएटेड विद लॉ, जो लॉ बनाते हैं, फॉर पॉलिसी मेकर्स। सिमिलरली फॉर अ कॉमन मैन। तो हम जब एक रिसर्च पेपर बनाते हैं तब हमें ये सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि हम ये पेपर किसके लिए बना रहे हैं, ये किसके
किसको हेल्पफुल होने वाला है, अकॉर्डिंगली हमें उसकी लैंग्वेज होनी चाहिए और अकॉर्डिंगली उसे लिखा जाना चाहिए। तो लैंग्वेज ऑल्सो प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल जब हम बात करते हैं कोई भी रिसर्च पेपर की। एंड लास्टली हमारा पेपर जब पूरा का पूरा बन जाए तो उसको ठीक से चेक करके, सारे कंटेंट्स को अच्छे से फाइनलाइज करके 2-3 कोलीग से रीड करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, विच इज ऑल्सो नोन एज प्रूफ रीडिंग। ओके, सो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है व्हेन वी आर ट्राइंग टू finalize our research output, that is a research paper. Now before I move on to the elements of research paper, I would like to draw your attention to point number 2, जो कि है जर्नल की रिक्वायरमेंट। मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए अपना स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ शेयर करना, एंड आई एम शोइंग यू फ्यू लिंक्स ओवर हियर जो कि आपको ये क्लैरिटी देगा कि व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से जर्नल रिक्वायरमेंट। हैव अ लुक एट दिस document. Is it visible? Yes, ma'am. Yes, Yeah, ma'am. thank you for confirmation. तो ये एक जर्नल है, ब्रिटिश फूड जर्नल, जो कि ABDC लिस्ट जर्नल है, स्कोपस है, वेब ऑफ साइंस है। सो ये जो जर्नल है, हर जर्नल में एक टैब होता है जिसका नाम होता है ऑथर्स गाइडलाइन। सो इवन बिफोर, आप शायद आपको ऐसा लगेगा कि अभी तो हमने लिखना शुरू नहीं किया तो हमको ये देखना क्यों जरूरी है। ये देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपको एक बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि हमसे जर्नल्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि जो रिसर्च पेपर हम बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू PhD नॉर्म्स ऑल्सो, उसको पब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और पब्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा अगर आपके पेपर जर्नल के हिसाब से बने हुए हैं तब। राइट, सो इफ यू कैन सी, इन्होंने पूरा डिटेल में डाला है कि ऑथर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, उनके रिसर्च और पब्लिकेशन एथिक्स क्या है। जैसे शायद एथिक्स का आपने एक टॉपिक भी मैम ने आपका आया हुआ है PhD कोर्स वर्क में। सो दे गिव यू अ लॉट ऑफ डिटेल। आपको अगर दिख रहा है तो जैसे ये बता रहा है मैन्युस्क्रिप्ट रिक्वायरमेंट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि ये बताता है, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब है रिसर्च पेपर, तो रिसर्च पेपर कैसा होना चाहिए। तो जैसे ये देखिए, इन्होंने बताया उनका फॉर्मेट क्या है। तो उनका फॉर्मेट है कि वो आपको वर्ड डॉक्यूमेंट ही आपको उनको सेंड करना है। आर्टिकल लेंथ देखिए, वो बताइए कि 4000 से 8000 वर्ड काउंट हो सकते हैं आपके रिसर्च पेपर के। आर्टिकल का टाइटल बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ऑथर की डिटेल में देखिए, उन्होंने बोल्ड करके बताया कि ऑथर की डिटेल में क्या क्या आपको डालना है। जैसे ईमेल आईडी होना चाहिए, नाम पूरा होना चाहिए, अफिलिएशन पूरा होना चाहिए। तो मैं सारा रीड नहीं करूंगी, मैं जस्ट आपको एक स्कैन थ्रू दे रही हूँ। देखिए, रिसर्च स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो पर्पस होना चाहिए, डिजाइन होना चाहिए, फाइंडिंग होनी चाहिए, एंड सो ऑन। आई होप ये स्क्रीन आपको दिख रही है जब मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। Yes, ma'am. ओके, हाँ, है ma'am. ना? ओके, थैंक यू। सो दिस इज अबाउट वन ऑफ द जर्नल। और इसी तरह से ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जर्नल सेम टाइप का फॉर्मेट फॉलो करते हैं, इसीलिए जब भी हम कोई रिसर्च पेपर लिखना शुरू करते हैं, इट इज मैंडेटरी कि हम एटलीस्ट 2-3 अलग जर्नल्स पे जाएं और देखें कि उन लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या है विद रेफरेंस टू द टाइप ऑफ पेपर दैट दे आर एक्सपेक्टिंग। मैं एक और लिंक आपको यहाँ शेयर कर रही हूँ। कैन यू सी द स्क्रीन? ये एक दूसरी जर्नल है विच Yes, इज ma'am. Yes. हेल्थ मार्केटिंग क्वार्टरली। अब देखिए, इसमें भी एक है इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर्स, एंड देन उन्होंने पूरा डिटेल में गाइडलाइन दिया है। देखिए, प्रिपेयरिंग योर पेपर, जिसमें लिखा है स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। देखिए, इसमें पूरा लिखा हुआ है। मैं इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ कि एक टाइटल पेज होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, कीवर्ड्स होने चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, मटेरियल एंड मेथड होना चाहिए, रिजल्ट चाहिए, डिस्कशन चाहिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट इज कि जिस भी जर्नल में हम अपना पेपर डालने के लिए सोच रहे हैं, उन जर्नल्स के वेबसाइट पे जाके उनका जो इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर रेफर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोस्टली कॉमन होता है, ऐसा ही होता है कि एक आध चीज ही है जो चेंज हो रही है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल, जो मैंने पहला वाला आपको एग्जाम्पल दिया, उसमें ऐसा लिखा था कि 4000 से 8000 वर्ड का पेपर होना चाहिए, मगर आप इधर देखिए, इस जर्नल के हिसाब से नंबरिंग नहीं दी है, उन्होंने पेजेस का ये किया है कि 25 पेज होना चाहिए और डबल
स्पेस्ड लाइनिंग होनी चाहिए। सो हर एक इसका फॉर्मेटिंग और हर एक जर्नल की रिक्वायरमेंट बहुत अलग होती है। तो वेन एवर वी आर trying to send it for publication or maybe when we are trying to write it, अगर हमारे journals already identified है, it would be a great idea to go and visit their websites and see उनकी expectations क्या हैं। तो that will give us a lot of clarity कि okay part 1 ये 2 3 4 and so on. So that is about journals requirement. Okay. Now once journal का requirement हो जाता है, उसके बाद हमें शुरू करना है या हम लोगों ने शुरू कर दिया होगा हमारा राइटिंग पार्ट। अब मेरी शीतल मैम से कल बात हुई थी, तो शी टोल्ड मी कि आप लोगों ने काफी सारे सेशंस अटेंड कर लिए हैं लिटरेचर रिव्यू के रिलेटेड, राइट? सो क्या कोई मुझे बताएगा लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू? Referring existing knowledge on our topic. Very good. Referring existing knowledge on our topic is what is literature review. और literature review करना क्यों important होता है? Ma'am. Pardon? Suggest I'm sorry. identify your research gap. Very good. Research- Identifying your research gap. So can I get few raised hands कि कितने लोगों ने अपने एरिया के लिए लिटरेचर एटलीस्ट एक या दो पेपर पढ़ना शुरू किया है? Raise hands if you have started. या एटलीस्ट देखे हैं कि हाँ भाई हाँ ऐसे पेपर्स होते हैं। Or it is too early, I don't know. Okay, 1 2 good, 3 good, fine. Okay, I see a few of the hands that have been raised. That's nice. Now अब एक बार हम लोगों ने पेपर आइडेंटिफाई किए और लिटरेचर रिव्यू भी हम लोगों ने अगर शुरू कर दिया, what should be the next step? Can anybody tell me? हमने पेपर आइडेंटिफाई कर लिए, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? Anybody? May I? Yes, please. Yes, please. After reading a paper, a research paper, and reviewing literature, we should find out the leftover areas Correct. and discover our own thoughts. How we can research some new. We can do research on some new topics, and how we can Very good. explore those topics and research papers leftover areas. Very good. Thank you for your answer. Now see, अब I'm moving to crafting the research paper, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हमें ये आइडिया लगाना, मतलब हमें ये पता करना है कि हमें लिखना कैसे है। तो मैं मेरे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से मैं आपको जिगजैग ऑर्डर में ले जा रही हूँ। जिगजैग इसलिए क्योंकि जब हम कोई भी रिसर्च पेपर देखते हैं तो आपको पहले इंट्रोडक्शन, पहले एब्स्ट्रैक्ट दिखेगा, फिर इंट्रोडक्शन दिखेगा, फिर लिटरेचर रिव्यू दिखेगा, पर लिखने का जो तरीका है वो सेम सीक्वेंस में नहीं होता। ओके, या सेम सीक्वेंस में नहीं होना चाहिए। ओके, तो मैं आपको उन सीक्वेंस के तरीके से लेके जा रही हूँ जो करने से हमारी प्रोसेस ज्यादा आसान होती है। तो इसलिए whenever you are planning to write a research paper, we should start with our literature review. ओके, तो अब आगे का जो सेक्शन है मैं आपको हर एक चीज डिटेल में ले जाऊंगी, तीन तीन पेपर के एग्जाम्पल्स भी दूंगी। एंड लास्ट में व्हेन आई एम डन विद ऑल द एलिमेंट्स, मैं आपको दिखाऊंगी कि अब सीक्वेंस क्या होनी चाहिए रिसर्च पेपर की। ओके, सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू टेक अप। तो सबसे पहले एज अ रिसर्चर हमें शुरुआत करनी चाहिए लिटरेचर रिव्यू से। ओके, अब लिटरेचर रिव्यू हमें दो चीजों में मदद करता है एज फार एज रिसर्च पेपर इज कंसर्न। लिटरेचर रिव्यू हमें मदद करता है हमारे इंट्रोडक्शन सेक्शन को स्ट्रेंथन करने में। लिटरेचर रिव्यू हमें हेल्प करता है हमारे लिटरेचर गैप्स को आइडेंटिफाई करने में, एंड हमारे लिटरेचर रिव्यू वाले सेक्शन को भी लिखने में और हाइपोथेसिस डेवलप करने में। तो दो चीजें हैं जिसमें हमें लिटरेचर रिव्यू बहुत ज्यादा मदद करता है। आई सी अ रेज्ड हैंड, डू वी हैव एनी क्वेरी? नगमा? Yes, Nagma, if you have any doubt, you can unmute yourself. No, ma'am. ओके ओके,
सो एज आई टोल्ड यू, लिटरेचर रिव्यू हमें 2 सेक्शन में, तो हम जब कोई भी रिसर्च पेपर लिखते हैं उसका पहला सेक्शन होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा सेक्शन होता है लिटरेचर रिव्यू का। तो ये दोनों चीजों में लिटरेचर रिव्यू हमें बहुत ज्यादा मदद करता है। तो एज ऑलरेडी बीन शेयर्ड बाय वन ऑफ द पार्टिसिपेंट, लिटरेचर रिव्यू हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ये पता चलता है कि लिटरेचर में कौन से गैप्स हैं। ओके, सो वो आइडेंटिफाई करने में हमें लिटरेचर रिव्यू मदद करता है। और दूसरी चीज जिसमें हमें लिटरेचर रिव्यू मदद करता है वो है हमारे खुद के रिसर्च क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने में, और उसके बेसिस पे ऑब्जेक्टिव्स बनाने में हमारी मदद करता है। तो व्हेन वी आर डूइंग लिटरेचर रिव्यू, हमें ये पता चलता है कि हम जिस भी एरिया में स्टडी कर रहे हैं उस पे कौन सा काम हो चुका है, क्या काम करना बाकी है, और जो बाकी है उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। So that is what is research gap, research questions and objectives। ये जो 2 सेक्शन है वो हमें लिटरेचर रिव्यू करने के बाद मिलते हैं, बट ये लिखे जाते हैं इन वेरी कंसाइज फैशन, मतलब बहुत ही स्मॉल क्रिस्प वे में इंट्रोडक्शन सेक्शन में लिखे जाते हैं। ओके, बट देन व्हेन वी आर राइटिंग देम इन लिटरेचर, अभी जब हम लिटरेचर रिव्यू की बात करते हैं, हमें कितने लिटरेचर स्टडी करने चाहिए? एनी आइडिया नंबर? कितने लिटरेचर रिव्यू होने चाहिए आपके हिसाब से? 2, 3 पेपर, 4 पेपर, कितने? कैन आई गेट सम इनपुट्स? for PhD or for research paper, na? Let us say for research paper and PhD, whatever is your opinion. So for research paper, I would say around 15 to 20 Okay, और more जितना भी हमारे पास available हो data on okay. Yeah, Vinita, Vinati, I don't know, I'm sorry, I think I spelled it wrong. Ma'am, it's Vinati. Okay, But Vinati. yeah, nonetheless, my answer was like around 30 to 40. Okay, क्योंकि 15 जैसे तो हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन और एक बेस क्रिएट करने के लिए ही रीड कर लेते होते हैं यूजुअली। okay, So I believe up to 40 is a good number. okay. Fine. So, see, to be very honest, if we ask anybody कि कितने papers होने चाहिए, there is no exact number to it. The more the better, and paper becomes more available if the research area that we are taking up is a bit a bit there available since long. For example, today if I try to work something like on branding, or maybe if I want to work or maybe write a research paper on something called brand equity, तो ये एक ऐसा टर्म है जो 1980s में कॉइन हुआ था। तो ऑफ कोर्स 1980s से लेके 2024, मतलब इतने सालों में काफी सारे पेपर्स होंगे इसके ऊपर। सो इसका सही जवाब एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं होता है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन कि हम कौन से टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं। बट नेवरदलेस जितने हम ज्यादा पेपर कर सकते हैं, द बेटर आइडिया वी गेट अबाउट द रिसर्च दैट वी आर वांटिंग टू अंडरटेक। Many a times number of research papers also depends upon what trend we are like trying to talk. For example, अगर मैं बात कर रही हूँ ऑनलाइन शॉपिंग की, तो इंटरनेट पेनिट्रेशन जब जिस साल से ज्यादा हुआ तो वो साल से पेपर्स के नंबर्स भी ज्यादा होंगे। ओके, सो बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक वी शुड आइडेंटिफाई द रेलेवेंट नंबर ऑफ पेपर्स। नाउ इवन इफ जैसे पहले स्कॉलर ने बोला कि 15 पेपर, या सेकेंड स्कॉलर ने बोला 40 पेपर्स, इज इट पॉसिबल फॉर अस टू रिमेम्बर एवरीथिंग दैट इज देयर इन दैट पेपर? इज no इट ma'am पॉसिबल? No. अगर 15 भी है, चलो 15 ले ले, या हम 5 भी ले ले, विल वी बी एबल टू रिमेम्बर व्हाट वाज बीन डन इन दोस 5 पेपर्स आफ्टर मे बी 1 month or 2 months डाउन द लाइन? Obviously no. So what is the solution? So now this is a solution that I'm sharing from my own experience. You should always create a literature matrix. We should always create a literature matrix for the literatures that we do. Okay. Now, what is literature matrix? So literature matrix would be an Excel documentation that we would be doing, जिसके अंदर हम काफी सारे कंटेंट, जब हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं, मतलब हमारी जो भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स हम पढ़ रहे हैं, उसको हम उस एक्सेल में रिपोर्ट करेंगे। जैसे कि ये सारी चीजें, इसका मैं आपको एक्सेल भी शेयर करूंगी।
हम अपने जितने भी पीडीएफ है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 15 पेपर कलेक्ट किए हैं तो हम उन्हें एक नंबरिंग दे देंगे 1 to 15, सो दे विल बिकम अवर सीरियल नंबर। कौन सा आर्टिकल है, उस आर्टिकल का ऑथर कौन है, उसका टाइटल क्या है, कौन सी वेबसाइट में से हमें वो वाला आर्टिकल मिला, कौन से जर्नल में से मिला, कौन से साल में वो पब्लिश हुआ, कौन सी कंट्री उन्होंने स्टडी की है, कौन से टॉपिक या थीम के ऊपर वो काम कर रहे हैं, उस पेपर के एम्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उनकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या थी, उनके रिस्पोंडेंट्स कौन से थे, उन्होंने कैसे डेटा कलेक्ट किया, क्या उन्होंने कोई थियोरी यूज की है, आई एम अगेन रिपीटिंग दिस, क्या उन्होंने कोई थियोरी यूज की है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट जब हम रिसर्च पेपर की बात कर रहे हैं। क्या उन्होंने कोई फैक्टर्स कंसिडर किए हैं, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको आपका रिसर्च पेपर राइटिंग में बहुत ज्यादा मदद करेगा। आई कम बैक टू इट कि वो कैसे मदद करेगा। उन्होंने कैसे टूल्स यूज किए थे, उनके मेजर फाइंडिंग्स क्या थे, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या उन पेपर में कोई गैप्स मेंशन किए हैं, कोई फ्यूचर स्टडीज का स्कोप है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस। क्या उनके पास उन्होंने कोई क्वेश्चनर यूज की थी जो उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में बताई है। तो ये सारी चीजों का हमें एक लिटरेचर मैट्रिक्स क्रिएट करना चाहिए। सो वी शुड रीड द पेपर, simultaneously we should create an excel sheet which I name it as literature matrix, जो कि आपको बहुत ज्यादा मदद करता है when you are writing the research paper. Okay, do we have any queries till now? No, ma'am. Okay, so I'll just share how a literature matrix look like. So this is, can you see an excel sheet? Yes, ma'am. सो जो चीजें मैंने अभी पीपीटी में आपको बताई थी, सीरियल नंबर, आर्टिकल ऑथर, पेपर टाइटल, ये सब इसमें है। आपको दिख रहा है जो येलो कलर में है, यस मैम। राइट? देखो जिसको मैंने थोड़ा बड़ा किया, तो ये हमारा एरियाज है। पहला पेपर मुझे पढ़ना है और इन सारी चीजों को इस एक्सेल शीट में डॉक्यूमेंट करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे कुछ मेरे थीसिस के स्टूडेंट्स का एक्सेल मैट्रिक्स है, लिटरेचर मैट्रिक्स है, जो कि चैट जीपीटी के ऊपर काम कर रहे थे कि स्टूडेंट्स चैट जीपीटी कितने फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। तो उन्होंने जितने पेपर्स पढ़े उन सबको इसके अंदर डॉक्यूमेंट किया है। द बेनिफिट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज कि जब भी आपको कोई भी चीज ढूंढनी है, इफ यू हैव एक्सेस टू दिस लिटरेचर मैट्रिक्स, यू विल बी एबल टू डू इट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ लिटरेचर मैट्रिक्स। द फैक्ट इज कि हाँ ये टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मगर इसकी वजह से आपका जितना रिसर्च स्ट्रक्चर्ड होगा वो आप सिंपल कोई पेपर पे लिखोगे तो वो नहीं होगा। सो एंड इसका कोई फॉर्मेट भी नहीं है, ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें इसको कैसे, मतलब कोई चीजें जो आपको ऐसा लगता है आपके काम की नहीं है तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हो। तो सी फॉर एग्जाम्पल पहला पेपर है वो 2023 का है, जॉर्डन में किया गया है एंड मिस यूज ऑफ चैट जीपीटी के ऊपर है। उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सिमिलरली आई जस्ट स्क्रॉल इट थ्रू। उन्होंने कैसा मेथड, तो उन्होंने क्वांटिटेटिव किया था, उन्होंने सर्वे किया है। किसका सर्वे किया, तो अकाउंटिंग स्टूडेंट्स का किया। कैसे किया, सो क्वेश्चनएयर से किया। उन्होंने कोई थियोरी यूज की है, तो हाँ उन्होंने एक थियोरी यूज की है जिसका नाम है फ्रॉड ट्रायंगल थियोरी। उन्होंने कोई पैरामीटर्स, अगर कोई चीजें हैं जो नहीं मिल रही है तो यू कैन लीव दैट पर्टिकुलर थिंग ब्लैंक। उन्होंने कोई पैरामीटर्स अलग से स्टडी किए हैं तो उसके बारे में, कौन से फैक्टर्स उन्होंने कंसिडर किए, उन्होंने कौन से टाइप का टेस्ट रन किया, उनकी मेजर फाइंडिंग्स क्या थी, उन्होंने कोई गैप्स आइडेंटिफाई किए हैं उनके पेपर में, क्या हम इनका कुछ मतलब इन्होंने कोई सजेशंस दिए हैं कि किस तरह से फ्यूचर क्वेश्चन हो सकता है, इन्होंने कौन से वेरिएबल स्टडी किए। तो इफ यू कैन सी दिस वन, जो मैं कलर थोड़ा चेंज करती हूँ, विच इज ग्रीन, कैन यू सी द बॉक्स विच इज ग्रीन इन कलर? यस मैम, यस मैम। हाँ, सो देखिए इन्होंने लिखा है आइटम्स, मतलब इस पेपर को उन्होंने जब रिसर्च किया तो उन्होंने तीन चीजें स्टडी की है, अपॉर्चुनिटी, रैशनलाइजेशन एंड प्रेशर। ये तीन चीजों को उन्होंने स्टडी किया है, जिनको उन्होंने मेजर किया है तीन तीन आइटम से, मतलब तीन तीन क्वेश्चन पूछे तीनों के लिए। तो अगर आप ऐसा एक लिटरेचर मैट्रिक्स
प्रिपेयर करते हैं एडवांस में, तो हम जब क्वेश्चनेयर बनाते हैं हमारे रिसर्च के लिए, तो ये लिटरेचर मैट्रिक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है, क्योंकि फिर हमें ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा कि कયું पेपर હતું જેમાં પેલો ક્વેશ્ચનેર હતો. So coding such type of things in a literature matrix is going to be very very useful and helpful, and ये लिखने में भी हमारी मदद करता है. जब मैं उस पोर्शन पे आऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी why do I say so. ओके, सो दिस इज हाउ अ लिटरेचर मैट्रिक्स शुड बी क्रिएटेड. आपके जितने पेपर्स हैं उसके लिए आप इस तरीके का लिटरेचर मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं. तो जैसे इन बच्चों ने 19 पेपर्स का लिटरेचर मैट्रिक्स तैयार किया था. अब जब मैंने आपसे पूछा था इनिशियली कि लिटरेचर रिव्यू हम क्यों करते हैं, तो आपने बताया था इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता चलता है कि हम जिस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं उसमें क्या क्या काम हुआ है और क्या काम नहीं हुआ. तो बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई द गैप. दिस लिटरेचर मैट्रिक्स अगर आप जुडिशियसली फॉर 50 पेपर्स, 100 पेपर्स या वॉट एवर यू आर डूइंग फॉर पीएचडी, अगर आप अच्छे से इसको करते हो, ये एक्सेल खुद आपको हेल्प करेगा फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर रिसर्च गैप. It will help you understand what is missing. Let me give you a very simple example. मैं सिर्फ ये वाली जो रो है अगेन, जिसको मैं एक ब्लू कलर दे रही हूँ, कैन यू सी कौन से रो को मैंने ब्लू कलर दिया, कॉलम को? Yes, ma'am. कौन सा कॉलम है? कंट्री. कंट्री, राइट. अब देखते हैं कि इन्होंने कौन से कंट्री में चैट जीपीटी पे स्टडी हुई है. सो फर्स्ट इज जॉर्डन, सेकंड इज ओमान, देन इट इज चाइना, देन इट इज टर्की. कैन यू सी मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तब ईरान, यूएस, जॉर्डन, यूके, एक है यूएस, चाइना, इंडिया. सो इंडिया का एक ही पेपर आया. सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, कजाकिस्तान, चाइना, जॉर्डन, यूएस, स्पेन, कोलंबिया, मलेशिया. ये कॉलम इटसेल्फ इज स्पीकिंग अलाउड कि रिसेंट ईयर्स में इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे चैट जीपीटी पे काम नहीं हुआ. आर यू विथ मी? Yes, ma'am. राइट. Yes, सो ma'am. दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट, इसलिए मैंने आपको ये समझाया. इसी तरीके से हम लोग हर एक कॉलम को वंस दिस एक्सेल इज बीन मेड ऑब्जर्व कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई कौन से टाइप का काम हो चुका है और कौन से टाइप का काम नहीं हुआ. सिमिलरली ईयर को भी हम लोग देख सकते हैं. जैसे एक पेपर था जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हुआ था, अगर हमको ये अब देखना है कि ओके वो जो ईयर वो कौन से ईयर का है जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हुआ था, तो इफ यू सी सारे लेटेस्ट पेपर है, 2023 के हैं सारे पेपर्स. ओके, सो सारे जो है वो लेटेस्ट है और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ एक ही पेपर है विच वाज अगेन आई थिंक 2020 या 23 वाला पेपर. सो दिस गिव्स यू एन आइडिया ऑफ व्हाट आर द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस दैट आर गोइंग अप. सो लिटरेचर मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो आपको ये बताता है कौन सी चीजें हो चुकी है. अगर वो हो चुकी है तो हम अपने हिसाब से एज अ रिसर्चर ये फाइंड कर सकते हैं कि क्या ऐसी चीजें जो नहीं हुई है और हम कर सकते हैं. और ये लिटरेचर मैट्रिक्स हमें मदद करता है ये आइडेंटिफाई करने में कि हम उसको कैसे सपोर्ट करें जब हम अपने रिसर्च पेपर को लिख रहे हैं. सो दिस वाज अबाउट लिटरेचर मैट्रिक्स. तो आई वुड रियली सजेस्ट यू ऑल कि हमें ऐसा एक लिटरेचर मैट्रिक्स अपने रिसर्च के लिए बनाना ही चाहिए. आई नो इट इज टाइम कंज्यूमिंग, बट ये जितनी आपकी मदद करेगा आपके पीएचडी रैशनल को स्ट्रॉन्ग करने में, उतना और कोई चीज नहीं करेगा. डू वी हैव एनी क्वेरीज एज ऑफ नाउ? No, ma'am. Okay, so अब I think the slide is visible to you now. If you can see, मैंने ये स्लाइड में कुछ चीजें हैं जो हाईलाइट की थी कि थियोरी पता चलेगी हमको, फिर हमको फैक्टर्स पता चलेंगे. अब आप आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये थियोरी कहाँ से पता चलेगी, क्योंकि मेरी लिटरेचर मैट्रिक्स में एक ऑलरेडी कॉलम है जहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि सब लोगों ने कौन सी थियोरी यूज की है. तो एज अ रिसर्चर हमें ये पता चलता है कि जिस एरिया में मैं रिसर्च कर रही हूँ मोस्टली कौन सी थियोरी यूज हो रही है और कौन सी थियोरी नहीं यूज हो रही है. तो एज अ रिसर्चर मैं लॉजिकल डिसीजन ले सकती हूँ कि मुझे वो थियोरी यूज करनी है जो सब लोग यूज कर रहे हैं, या कोई नई थियोरी है जो आ रही है और पिछले 2-3 सालों में यूज हो रही है वो थियोरी लेनी है. तो अगर आपको कल को कोई ये बोले कि कौन सा थियोरी आप यूज कर रहे हो, क्यों ये थियोरी यूज किया, तो इफ यू हैव अ लिटरेचर मैट्रिक्स
आप अपने पीएचडी को एक बेटर डिफेंड कर पाओगे, अपने रिसर्च पेपर को भी बेटर डिफेंड कर पाओगे। द सेम इज द केस फॉर ऑल ऑफ देम, फैक्टर्स, मेजर फाइंडिंग, लीड क्वेश्चंस। सो क्वेश्चंस कैसे बनाए आपने, तो आप ये बता सकते हो कि हमने इस पेपर का रेफरेंस लिया जिन्होंने XYZ% की स्केल ली थी और हमने भी वही स्केल को यूज किया है। तो ये सारी चीजें आपको लिटरेचर मैट्रिक्स में से बहुत ही ब्यूटिफुली यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई देम। So this is about literature review, creating the matrix. Now when you are talking about literature, research paper में ये Excel तो जाएगा नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक तो रिसर्च पेपर के ऊपर था कि रिसर्च पेपर में हमको किस तरह से उसको पुट अप करना है। तो जब हम एक रिसर्च पेपर की बात करते हैं, जितने भी पेपर्स आप देख लो, लिटरेचर रिव्यू में 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं। द फर्स्ट सेक्शन इज गोइंग टू बी लिटरेचर थीम्स एंड द सेकेंड सेक्शन इज गोइंग टू बी कि आप कौन सा मॉडल या थियोरी यूज कर रहे हो। I'm again repeating, I think you will be able to see it on screen also. जब हम रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो while we are writing, 2 चीजें रिसर्च पेपर में मेंशन करनी ही होती है। One is our literature themes, जो कि आती है हमारे टाइटल के बेसिस पे कि हम लोगों ने कौन से वेरिएबल सिलेक्ट किए हैं। आई विल शो यू फ्यू एग्जांपल्स नाउ। और सेकंड, ये पूरे स्टडी को कंडक्ट करने के लिए हमने कौन सी मॉडल या कौन से थ्योरी को यूज किया है। ओके, नाउ आई एम शेयरिंग फ्यू एग्जांपल्स विथ यू टू शो यू हाउ टू हाउ पीपल रिपोर्ट देम इन अ रिसर्च पेपर। ओके, तो अब मैं जो आपको बता रही हूं, मैं रिसर्च पेपर की बात कर रही हूँ। ओके, सो आई विल शेयर माय स्क्रीन अगेन। देयर आर 3 एग्जांपल्स दैट आई विल बी टेकिंग अप। वन इज ई वर्ड ऑफ माउथ, बिकॉज मैं मार्केटिंग बैकग्राउंड से हूं तो मैंने वैसे ही एग्जांपल्स लिए हैं, बट दे आर इंटरेस्टिंग एंड यू विल बी एबल टू इजिली अंडरस्टैंड देम। सो लेट मी शो यू द फर्स्ट पेपर। I think the screen is visible. Yes, ma'am. Yes, सो ma'am. नाउ लेट अस लुक एट, Yes, मैंने आपको ma'am. बोला कि रिसर्च पेपर जब हम लिखते हैं हमें 2 चीजें करनी है। वन इज हम कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, सेकंड इज हमारे थीम्स कौन से जनरेट होके आ रहे हैं। और मैंने आपको ये बताया कि थीम्स जब हम बात कर रहे हैं तो वो आते हैं हमारे टाइटल में से, क्योंकि उसमें हमने स्पेसिफाई किया होता है कि हम किस एरिया पे काम कर रहे हैं। तो अब जैसे अब इनके टाइटल को हम थोड़ा ढंग से देखते हैं। द टाइटल इज अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ EWOM। E is electronic word of mouth communication through the lenses of information adoption model। तो अब मैंने कुछ चीजें पिंक में हाईलाइट की है, मतलब ये पेपर 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। सेकेंड, वो एक मॉडल, वो एक थ्योरी ले रहा है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन अडॉप्शन मॉडल। ओके, सो लेट अस सी उनका लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन कैसा दिख रहा है। ओके, सो दिस इज देयर इंट्रोडक्शन, वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। अब ये देखिए, कैन यू सी 2 पॉइंट थियोरी एंड हाइपोथेसिस, क्या आपको दिख रहा है? Yes, Is it ma'am. visible? हाँ। सेक्शन 1 रिसर्च पेपर का होता है इंट्रोडक्शन। सेक्शन 2 रिसर्च पेपर का यूजुअली होता है लिटरेचर रिव्यू। तो कुछ लोग लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, कुछ लोग थियोरी एंड हाइपोथेसिस ऐसा लिखते हैं। अब इस पेपर को ओपन करते टाइम मैंने आपको बोला था, उन्होंने 2 चीजों के बारे में बोला है। वन इज इलेक्ट्रिक वर्ड ऑफ माउथ and electronic word of mouth, and the second is one theory that they are talking about, that is information adoption model. Now have a look at it. 2.1 क्या है वो टाइटल? इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऑफ माउथ। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऑफ माउथ क्या है वो लिखा, और आपको जितने ब्लू कलर के जो भी दिख रहे हैं ना, वो सारे उनके साइटेशन है। मतलब वो लिखने के लिए उन्होंने जिन जिन पेपर्स को रेफर किया है उनके साइटेशन है। अब देखिए 2.2 उनका जो है, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ EWOM कम्युनिकेशन। तो देखिए पहले उन्होंने ये बताया इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऑफ माउथ क्या क्या होता है। सेकंड, उन्होंने 2.2 में बताया इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऑफ माउथ में कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो जैसे देखिए मैंने हाईलाइट किया है पिंक में, मैं सारा नहीं पढ़ूंगी, आई विल जस्ट गिव यू एन आइडिया।
मैसेज होता है, सोर्स होता है, मीडियम होता है, रिसीवर होता है। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सोशल कम्युनिकेशन। तो इस तरह से उन्होंने उसको भी एक्सप्लेन किया। तो ये इतना सा उन्होंने लिखा है अबाउट द टॉपिक दैट दे हैव टेकन अप। इसको कहा जाता है लिटरेचर थीम्स, जो कि आते हैं आपके टाइटल में से, मतलब आपका रिसर्च एरिया क्या है टू राइट द रिसर्च पेपर। अब इसके अलावा उन्होंने अपने टाइटल में एक्सप्लेन किया था कि दे आर गोइंग टू यूज अ मॉडल। तो देखिए 2.3 उन्होंने, देखो क्या टाइटल दिया है उसका, थियोरिटिकल बैकग्राउंड एंड रिसर्च मॉडल। तो थियोरी, कौन सी थियोरी? तो देखिए मैंने कहीं पे इसको शायद या ग्रीन में हाईलाइट किया है, आई डोंट नो विजिबल है या नहीं, बहुत ज्यादा लाइट हो गया आई गेस। कैन यू सी? इंफॉर्मेशन अडॉप्शन मॉडल, कैन यू सी यस दैट? मैम, यस हाँ, मैम। यस इट मैम। वॉज डेवलप्ड बाय एक बंदे ने 2003 में किया। ये सारी चीजें उन्होंने उसके बारे में लिखी। ओके, एंड देन स्लोली स्लोली अब इन्होंने इन दोनों चीज को इंटीग्रेट किया, इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऑफ माउथ और थियोरी। तो उनका रिसर्च किस एरिया में है? सो सी, ये उनका उन्होंने फ्रेमवर्क बनाया। ओके, और एंड देन एक एक फ्रेमवर्क का रिलेशनशिप हाइपोथेसिस डेवलप किया उन्होंने। ओके, ऑगमेंट क्वालिटी, ये सारे एलिमेंट्स है इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऑफ माउथ के, जो उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया है। और फिर उसका हाइपोथेसिस बनाया कि इट हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। सोर्स क्रेडिबिलिटी, तो देखिए H2 उन्होंने डाला। सो ये होता है लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन। कैन यू सी दैट? यस मैम। राइट, तो ये 2.4.9 तक उन्होंने किया लिटरेचर रिव्यू। ओके, डू वी हैव एनी क्वेरीज एज ऑफ नाउ? नो मैम। ओके, अब मैं आपको दूसरा एक एग्जाम्पल बताती हूँ। अब मैं 3 एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ, द रीजन इज हर एक का लिखने का स्टाइल अलग होता है, मगर द वे इट हैज टू बी रिटन डजंट चेंज। ओके, कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, ma'am. यस मैम। अब प्रिय हम गौर करते हैं इनके टाइटल पे, और अब आप मुझे बताइए इनके थीम्स कौन से होंगे, किस बारे में होगा इनका लिटरेचर? प्लीज रीड द टाइटल। Analysis of moderating effect of front of pack labeling on relation between brand attitude and purchase intention. Guess कर सकते कौन से sections पे होगा? Please try. No, ma'am. Yeah, First of all, on the front of pack labeling, and then very the good. correlation, relation between brand attitude and purchasing intention. राइट, सो इनके टाइटल में जो 3 चीजें मैंने हाईलाइट की है, दे आर देयर मेजर कंस्ट्रक्ट्स, मतलब वो चीजों पे उन्होंने ज्यादा लिखा होगा। लेट अस चेक ऐसा है या नहीं। सो सी, कैन यू सी सेक्शन 2 अगेन? दिख रहा है आपको Yes, सेक्शन ma'am. 2? देखिए इसका नाम है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। अब थियोरी किसके बारे में? तो देखिए एटीट्यूड और परचेज इंटेंशन के बारे में उन्होंने थियोरी लिखी है। द टू मोस्ट वाइडली यूज्ड मॉडल्स टू एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर आर थियोरी ऑफ रीजन्ड एक्शन एंड थियोरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर। नाउ ये मैं क्यों रीड कर रही हूँ? बिकॉज मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड में बताया कि आप लिटरेचर मैट्रिक्स क्रिएट करो। जब अगर हम बहुत ही सीरियसली लिटरेचर मैट्रिक्स को अगर हम क्रिएट करते हैं, और अगर हम 50 पेपर का वैसा लिटरेचर मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं, आप भी ये लाइन लिख पाओगे कि आप जिस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं वहां पे विच इज द मोस्ट यूज्ड थियोरी, which is the least used theory. That is the power of literature matrix. So to be very honest, रिसर्च जो है उसका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लिटरेचर रिव्यू। वो आपकी जितनी अच्छे से आपने उसमें टाइम डाला होगा, जितना अच्छा आपने उसको समझा होगा फॉर योर रिसर्च एरिया, द बेटर यू विल बी एबल टू डू। सो एनीवे, आई एम नॉट स्पेंडिंग मच ऑफ टाइम। सो सी, उन्होंने वो सारी चीजें यहाँ लिखी है। फिर देखिए 2.2 क्या लिखा है? 2.2 व्हाट इज द नेम? कैन यू सी 2.2? मैंने हाईलाइट Yes, किया ma'am. है उसको, Yes, ma'am. कलर मैं चेंज करती हूँ, वेट। हाँ, कैन यू सी दैट? व्हाट इज इट? FOP, दैट इज फ्रंट ऑफ द पैक लेबलिंग।
नाउ लेट मी अगेन टेक यू टू द टाइटल। देखिए, फ्रंट ऑफ द पैक लेबलिंग, एटीट्यूड के बारे में बात किया, परचेज इंटेंशन के बारे में बात किया। एम आई क्लियर टू यू ऑल नाउ? Yes, ma'am. Okay, so I will share the last example. अब आप इसमें आप ही मुझे बताएंगे कि which is the area that they might be talking about. Look at the title. I think now it would be visible. Yes, ma'am. चलो, any guesses? किस एरिया पे होगा लिटरेचर रिव्यू? May I, ma'am? Yes, please. Behavior of consumer in Very good. purchasing, using, and disposing of clothes. करेक्ट। सो क्लॉथिंग के ऊपर होना चाहिए लिटरेचर। परचेज के बारे में हो सकता है, यूजिंग के बारे में हो सकता है, डिस्पोजिंग के बारे में हो सकता है, और कंज्यूमर बिहेवियर किसके लिए? ओनली फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। लेट अस चेक सही है या नहीं। बाय द वे, कौन सा सेक्शन होगा ये? विच सेक्शन विल इट बी? लिटरेचर रिव्यू मोस्टली कौन सा सेक्शन होता है? Second. गुड। सो हैव अ लुक एट देयर लिटरेचर। वेरी गुड। देखिए, दिख रहा है 2 लिटरेचर रिव्यू, है ना? अब देखिए 2.1 देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर, जो कि ऑलरेडी उन्होंने बताया। देखिए सेक्शन 2.2 देखिए, मॉडल्स ऑफ चेंजिंग बिहेवियर। तो यहाँ पे उन्होंने थियोरी की बात की है। दिख रहा है यहाँ पे कौन सी थियोरी यूज की है इन्होंने? Yes, ma'am. थियोरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर। ओके, अब देखिए फिर उन्होंने अपना जो भी हाइपोथेसिस है वो डेवलप किया है, और फिर ये उनका मॉडल। तो आई होप यू आर गेटिंग मी। अब मैं वापस ले जा रही हूँ आपको स्लाइड की तरफ। जब हम अपना वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, इज द स्लाइड विजिबल? No, ma'am. हाँ, जस्ट अ No, मिनट, जस्ट अ मिनट, या ओके। अब एक 2 मिनट के लिए अब इसको जरा देखिए। अब आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है? जो आपका सेक्शन 2 होगा उसमें आपको 2 चीजों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। आपकी लिटरेचर थीम्स के बारे में, मतलब जैसे टाइटल आपका जो भी है उस हिसाब से आपको उनके बारे में लिखना पड़ेगा। कौन सी थियोरी यूज की है वो आपको लिखना पड़ेगा। देन आपको इन दोनों को मिक्स करके अपना फ्रेमवर्क प्रेजेंट करना पड़ेगा, और उसके हाइपोथेसिस लिखने पड़ेंगे। डिपेंड्स कि आप कौन से टाइप का रिसर्च कर रहे हो, उस बेसिस पे हाइपोथेसिस आप डेवलप कर सकते हो। डू वी हैव एनी क्वेरीज? No, ma'am. ओके, In this, यहाँ तक आई होप समझ में आ रहा है सबको? ma'am, I have one doubt. Yes, Actually, you have please. shown the slides. Ma'am, so much of blue color was used. So that means that there was citation. So many citations, ma'am, they are using. Can we Pardon, I heard many बहुत सारे citations? citations. हाँ, Can we do that? There is some limitation of citation, and I heard that it was full of citations. so actually जितने भी पेपर्स मैंने आपको दिखाए, दे आर ऑल वेरी वेरी रेप्यूटेड जर्नल्स, इंटरनेशनल जर्नल्स, एंड दे आर स्कोपस इंडेक्स्ड, ABDC, and also in Web of Science, many of them. These journals actually want you to cite authors more and more, because many a times जो भी थियोरी या मॉडल हमने यूज किया होगा वो हमारा नहीं होता है, राइट? हम लोगों ने किसी और की थियोरी को रेफर किया है, और हम ये बता रहे हैं कि ओके देखो इन्होंने ये बोला है कि ये मॉडल ऐसे हो रहा है तो इसलिए ये ऐसे वर्क कर रहा है, या इस पैरामीटर का इस पैरामीटर से रिलेशन है। तो ये मैं नहीं कह सकती बिकॉज आई एम अ रिसर्चर। सो इसलिए सेक्शन 2 जो होता है वो पूरा का पूरा लिटरेचर रिव्यू होता है, जो कि जब मैंने शुरू किया तभी आपसे पूछा था कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, तो बताया गया था कि दूसरों ने क्या काम किया है। तो जब हम दूसरों के काम को ही लिख रहे हैं तो उन्हें कोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए सबसे ज्यादा साइटेशन आपको सेक्शन नंबर 2 एंड सेक्शन नंबर 1 में मिलेंगे।
क्योंकि हम अपने रिसर्च को नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, हम दूसरों ने क्या किया है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड देन अपने रिसर्च को आगे बढ़ा रहे हैं कि इन्होंने ये किया है, ये बाकी है, वो मैं कर रही हूँ। तो दैट इज वाई साइटेशन इज इम्पोर्टेंट, निशा, Okay. राइट? अब ऐसे सेक्शंस आएंगे जिसमें आपको साइटेशन दिखेंगे ही नहीं, आई विल शो यू दैट ऑल्सो। ओके, ये सेक्शन Actually, yeah, बिकॉज, I'm in पार्डन, English subject, na, that I am from English, so I thought these many citations in English literature, I don't think we are using. okay, that might, you should go on to check few of the papers in your own domain and see how they are working. So the papers that I am showing to you are from management domain, and the literature review cannot be done without having appropriate citations. That I am very sure about. You need to do citations if it is a literature review. Nisha. Thank you. Yeah. So we move to the next thing. Now I move on to the first section, that is section number 1, which is introduction. So when you are talking about an introduction section, it should have some pyramidal shape like this. Okay. Now what do I mean over here is कि हमारा introduction section is not less than anything like a a trailer of a movie. एग्जाम्पल, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी मूवी देखने जाना है? कैन आई गेट सम ओपिनियन? हाउ डू वी डिसाइड मैम, कौन सी मूवी देखने जाना है? टाइटल टाइटल, ओके, और ट्रेलर देखती हूँ। ट्रेलर देख के, है ना? क्योंकि Story ट्रेलर and से हमें follow. थोड़ा आइडिया आ जाता है कि ये किस के बारे में होगा. डू वी अग्री टू इट? Yes, ma'am. Yes. That is Correct. exactly what is an introductory section of a research paper. It is as important as a trailer. तो जैसे कि कोई भी मूवी क्रिएट करते टाइम डायरेक्टर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता है लॉन्च ऑफ द ट्रेलर या सॉन्ग या एवरीथिंग, बिकॉज इट इज गोइंग टू क्रिएट अ फर्स्ट इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन है. सिमिलरली इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो होता है वो भी आपके रिसर्च पेपर का पहला इंप्रेशन होता है. और इसीलिए इंट्रोडक्शन सेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. और वो स्ट्रॉन्ग हम कैसे कर सकते हैं? तो उसमें कंटेंट होना चाहिए, जैसे कि हम हमारा कौन सा एरिया प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या इस एरिया में कोई बिजनेस प्रॉब्लम्स है, या कुछ अच्छा हो रहा है इसलिए हम रिसर्च कर रहे हैं, या कुछ बुरा हो रहा है इसलिए हम रिसर्च कर रहे हैं, या कुछ बहुत ज्यादा अलग हो रहा है इसलिए हम रिसर्च कर रहे हैं. सो दैट इज हाउ द इंट्रोडक्शन section should begin. After doing that, we should talk about what is unknown. मतलब क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमको जरूरत पड़ गई कि हम ये रिसर्च कर रहे हैं? क्या ऐसी कोई चीज है जो अवेलेबल नहीं थी और बहुत ज्यादा जरूरी थी, इसलिए हम लोगों ने ये रिसर्च करना इंपॉर्टेंट समझा? एंड लास्टली, हम इस रिसर्च को कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं, और कौन सी मेथड यूज करने वाले हैं, और इस रिसर्च का क्या बेनिफिट होने वाला है टू द रीडर्स. सो इतनी चीजें आनी चाहिए एक इंट्रोडक्शन सेक्शन में. आई एम अगेन रिपीटिंग, हमारा रिसर्च कौन से एरिया में है, वो रिसर्च क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस. इट कैन बी कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से, इट कैन बी बहुत अच्छा हो रहा है या बहुत अच्छा ट्रेंड में चल रहा है इसलिए हम उसके बारे में जानना चाह रहे हैं. तो प्लीज डू अंडरस्टैंड, बिजनेस प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि हमेशा नेगेटिव हो. इट कैन बी इवन कि कोई चीज बूम हो रही है एंड वी वांट टू स्टडी कि ऐसा तो क्या उसमें चार्म है कि वो बूम हो रहा है. दैट ऑल्सो कुड बी अ रीजन. वी वांट टू नो कि ये बूम हो रहा है बट पता नहीं है क्यों हो रहा है, तो दैट माइट बी अ गैप. ये प्रॉब्लम है पर पता नहीं है कि क्यों ये प्रॉब्लम है, दैट माइट बी अ गैप. एंड लास्टली, हम ऐसे इस प्रॉब्लम को या इस क्वेश्चन को जो हमारे दिमाग में है उसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं और उसका क्या कंट्रीब्यूशन निकलने वाला है. दैट इज हाउ एन इंट्रोडक्शन सेक्शन शुड बी. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन सेक्शन, it is going to be your section number 1 of the paper, and literature review was section number 2. Okay, now I'll show you few examples of this section. Please do remember,
आई डोंट नो कि अभी तक आप लोगों में से कितने लोगों ने रिसर्च पेपर सेंड करना शुरू किया है, बट one of the major reasons why most of the papers get rejected is because your introduction is not attractive. So introduction section has to be very, very beautifully created, otherwise you will lose out